Good morning students. Now today we are going to see another lecture, that is lecture number 14. In this lecture we are going to see certain topics that are being related to the previous lecture, that is design constraints for the relational schema. So we are having specialization, we will see generalization, we will see the use of both specialization and generalization. We will see that how the design constraints on specialization and generalization is being defined. We will also see again a aggregation limited approach in which we will see it in a refined manner. We will see the example and we will see that how these relationship that we have seen is actually going to define and make the concept more elaborate. So first of all we will start our concept, that is specialization. What happens in the specialization? When we say about the specialization, that is being defined as a top-down design process. So specialization says it is a top-down design process. We designate subgrouping within an entity set that are distinct from other entities in the set. So specialization specifies the first point that it is a top-down design based approach, and in it we make the subgrouping of entities which are different or distinct from the other entities. Secondly, these subgroupings become lower level entity that have attribute or participate in relationship that do not apply to the higher level entity set. So the second point about the specialization says that when we make the subgrouping of entities which are different from the other entities and we take the subgroup, then the subgroup's lower level entity comprises of all the attributes, while the other types of entities which are specifying the relationship do not have any attribute. Third important point about the specialization says that it is being described by the symbol, that is triangle, and inside in the triangle we write is a. ISA means is a. So for example, if I say customer is a person, so is a means defined as a specialization and it is being denoted by a triangle. Now if we say about the attributes that are being related with the entities in this specialization, then lower level entity inherits all the attribute, while the higher level entities are being used only to specify the relationship. So we are having this as the general characteristics or features specifying the term, that is specialization. Now if we see specialization with the help of an example, you can see here that we are having one entity as person, second entity as employee, and third entity as customer. Similarly, we are having other three entities, that is officer, teller, and secretary. Now if we see, then we are having a relationship, that is we are having the person with these three attributes, employee is having only one attribute, and customer is having one attribute, while officers, teller, and secretary are having their respective attribute. Now if you see the first type, person is a employee. What I am saying, person is a employee, that means it is a first group. In this group we are having lower entity as the employee, lower entity as the person which is having all the collection of attribute, while the higher entity is the employee which is being related by a specialization is a. So person is a employee, person is a customer. So one group is, this is the first group, or we can say this is the first group in which we are having two types of entities related. Now when we say specifically about the employee, we are having other things. So employee can be either officer, either teller, or secretary. So this is the second group in which this is the entities, these are the entities which are having the attribute, while this is the entity which is having only one attribute, and it is being connected by the relationship with the triangle, that is a. तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ग्रुप बना दिए, ये हमारा पहला ग्रुप हुआ, ये हमारा दूसरा ग्रुप हुआ है। तो इस ग्रुप के अंदर हमारा स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट डिफाइन हो रहा है, इसीलिए हमने दो बार ट्राइंगल्स या इज़ा डिनोट किया है स्पेशलाइजेशन को बताने के लिए. सो दिस इज द कंसेप्ट दैट क्लियरली डिफाइन. Now the second important is the generalization.
Generalization is being made as a bottom-up design process, while the previous one is the specialization, it is top-down approach. So generalization is a bottom-up approach and it combine the number of entity that have same features. वहाँ पे क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था हायर लेवल और लोअर लेवल में. लोअर लेवल में वो एंटिटी होती हैं जिन पे एट्रीब्यूट्स होते हैं और हायर लेवल में वो एंटिटीज होती हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप टाइप बनाने में काम करती हैं. जबकि जनरलाइजेशन में हम उन एंटिटीज को कंबाइन करते हैं जिनके पास सेम फीचर्स होते हैं. तो स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन आर इन्वर्जन्स ऑफ ईच अदर. They can be represented in the same way as we need for specialization as we need to represent inside in the ER diagram. Secondly, these both terms are interchangeable. We can specify, we can take the generalization or we can take the specialization. So generalization is just the another term for the specialization. बाकी उसमें कुछ भी नया नहीं है. अब अगर हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन को देखें तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन कैन हैव, हमारे पास मल्टीपल तो स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं किसी भी एंटिटी सेट के लिए जिसके डिफरेंट फीचर्स हैं. तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में पहला पॉइंट हमें यही बताता है कि वी कैन हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑफ एन एंटिटी सेट बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर. फॉर एग्जाम्पल, if I take permanent employee versus temporary employee in addition to officer versus secretary versus teller, अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल में ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी के साथ साथ एक रोल और स्पेसिफाई कर दूं जो कि क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय का या टेम्परेरी एम्प्लॉय का, तो मेरे पास क्या होगा, हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय या तो मेंबर होगा परमानेंट एम्प्लॉय का या टेम्परेरी एम्प्लॉय का. भाई अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में तो एम्प्लॉय जो है अब या तो सिर्फ वो ऑफिसर और टेलर था, अब उसकी जगह वो दो रोल भी और स्पेसिफाई करेगा. तो इसका मतलब हर एम्प्लॉय मेंबर होगा परमानेंट एम्प्लॉय का या टेम्परेरी का, या फिर वो मेंबर होगा ऑफिसर, सेक्रेटरी और टेलर का. तो इस तरीके का रिलेशनशिप जो बनता है वो सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है. दिस इज द कंसेप्ट दैट क्लियरली सेज अबाउट द स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन. अब अगर हम डिज़ाइन कॉन्स्ट्रेंट को देखें स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के लिए, कि अगर हम डिज़ाइन में कॉन्स्ट्रेंट लें जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, तो हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट आ जाएंगे. कॉन्स्ट्रेंट क्या कहेंगे, पहला कॉन्स्ट्रेंट कहेगा कि हमारे पास एंटिटी कैन बी अ मेंबर ऑफ गिवन लोअर लेवल एंटिटी. कॉन्स्ट्रेंट ये कहता है कि कॉन्स्ट्रेंट उन एंटिटीज़ पे काम करेगा जो कि लोअर लेवल एंटिटी के मेंबर होंगे. वो कब होंगे, अगर हम कंडीशन बेस्ड या यूज़र बेस्ड डिफाइन करें. तो हमारे पास अगर मान लीजिए रूल कहता है कि ऑल कस्टमर्स ओवर 65 ईयर्स आर मेंबर्स ऑफ सीनियर सिटीजन एंटिटी सेट. दैट मीन्स ऑल कस्टमर, जितने भी कस्टमर हैं वो 65 साल से ज़्यादा के होंगे और वो सीनियर सिटीजन होंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया, सीनियर सिटीजन पर्सन है. तो कंडीशन बेस्ड क्या है, पहली कॉन्स्टेंट क्या है कि हमें कंडीशन बेस्ड पे बताना पड़ेगा कि लोअर लेवल में कौन कौन सी एंटिटी यूज़ करी है. दूसरा क्राइटेरिया यूजर डिफाइंड का हो सकता है. इसी तरीके से हमारे पास सेकंड कॉन्स्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्स्टेंट ऑन वेदर और एंटिटीज में बिलोंग टू मोर देन वन और लोअर लेवल एंटिटी सेट विद इन अ सिंगल जनरलाइजेशन. सेकंड कॉन्स्टेंट ये कहता है कि क्या एंटिटीज बिलोंग कर सकती हैं एक से ज़्यादा एंटिटी सेट में जनरलाइजेशन के बेसिस पे. तो अगर वो करती हैं, नहीं करती हैं तो वो डिसजॉइंट है, और अगर करती हैं तो ओवरलैप है. जैसे कि अगर एंटिटी बिलोंग करती है एक लोअर लेवल सेट में तो ईआर डायग्राम में वो डिसजॉइंट लिख देंगे हम इज ए ट्राइंगल के पास, और अगर नहीं करती है करती है तो वो ओवरलैपिंग हमारे पास हो जाएगी. तो हमारे पास यहाँ पे अगर जो आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में क्या है, एक एम्प्लॉय एंटिटी दो बार रोल प्ले कर रही है. पहले तो वो इजे वाले इस वाले ट्राइंगल के साथ पर्सन से रिलेटेड है. दूसरी बात, यही एंटिटी इजे के साथ इन तीन रोल्स में स्पेसिफाई कर रही है. तो ये एक कॉमन एंटिटी है, इसका मतलब ये ओवरलैप कर रही है. ओके, डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैप है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है. So this is the simple point that clearly says about the design constraint. Now if I consider again the aggregation जो हमने पहले देखा था, अगर मैं एग्रीगेशन को अब टर्नरी रिलेशनशिप वर्क्स ऑन पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, ठीक है, और एम्प्लॉय मैनेजेस द ब्रांच और मैनेजर मैनेजेस द जॉब ऑफ अ एम्प्लॉय. तो अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप है जो कि कॉम्बिनेशन है बाइनरी रिलेशनशिप का और टर्नरी रिलेशनशिप का, अगर मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा हमें ये पता लगाना है कि मैनेजर रिकॉर्ड करना चाहता है कौन कौन से जॉब एम्प्लॉय करता है किसी ब्रांच के अंदर.
अगर मुझे ये पता लगाना है तो इस डायग्राम में देख सकते हैं दो तो रिलेशन है तो कई सारी एंटिटीज हैं। तो ये डायग्राम कुछ थोड़ा मुझे समझ में कम आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर इस डायग्राम में कुछ चेंजेस करे। चेंजेस क्या करें, सबसे पहले मैंने ये बताया कि रिलेशनशिप कौन कौन से हैं। तो पहला रिलेशनशिप सेट आया वर्क्स ऑन का, जो कि ये बताता है मैनेजर्स और वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर मैनेजर किसी ना किसी वर्क्स ऑन से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप मैनेजर्स को कंट्रोल करता है। और तीसरी बात, अगर आप देखें तो हमारे पास यही डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सा जॉब कब होता है। तो अगर हम इस रिडंडेंसी को एग्रीगेशन से रिमूव कर दें तो हमारे पास सारी एंटिटी क्लियर हो जाएंगी, सारे रिलेशनशिप क्लियर हो जाएंगे और हम आसानी से पता लगा सकेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से जॉब में कौन सी ब्रांच पे काम कर रहा है। और एम्प्लॉय, ब्रांच और जॉब हमारे पास एक मैनेजर के रोल है। तो अब हमारा ये डायग्राम इस तरीके से क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है। क्लियरली कैसे हो रहा है कि अगर आप देखें तो आपके पास क्लियरली इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अगर देखें तो आपके पास सिंपली ये डायग्राम डिफाइन कर रहा है। कैसे, इस बॉक्स के अंदर तो ये बाइनरी रिलेशनशिप है और यहाँ से देखें तो ये टर्नरी रिलेशनशिप है, बाहर का रिलेशनशिप है, लेकिन इसी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये एग्रीगेशन के कंसेप्ट को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। सो दिस इज द ईआर डायग्राम विद द एग्रीगेशन। नाउ अगर हम अपना वही डायग्राम देखें जिसमें हमारा इज एक रिलेशन शो कर रहा था एम्प्लॉय मैनेजर का, और मैनेजर जो था मैनेज कर रहा था डिपार्टमेंट, तो इसमें हमारी प्रॉब्लम क्लियरली स्पेसिफाई नहीं हो रही थी। तो ये हमारा एक बैड डिज़ाइन था, इसीलिए हमने उसमें सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया जिससे कि हमें हर चीज़ प्रॉपरली स्पेसिफाई हो गई है। तो बेटर डिज़ाइन के लिए हमने उसमें की भी ली और टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट भी लिया है। अब अगर आप इसी एग्जाम्पल को देखें तो एम्प्लॉय कवर्स डिपेंडेंट और एम्प्लॉय कवर्स द पॉलिसी। यहाँ पे सिंपल ये है कि एम्प्लॉय के पास डिपेंडेंट भी हैं और एम्प्लॉय के पास पॉलिसी भी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि एक एम्प्लॉय के पास कितने डिपेंडेंट है और कितनी पॉलिसी उसके पास है। तो इसलिए हमने क्या करा, अब उसको ऐसे कर दिया कि एम्प्लॉय परचेज करता है पॉलिसी और पॉलिसी बताती है कि उसके कितने बेनिफिशियरी डिपेंडेंट हैं। तो इसमें हमने की वगैरह जब अप्लाई करी तो ये क्लियरली स्पेसिफाई हो गया और यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन भी बता रहा है। तो ये एक बेटर डिज़ाइन की अप्रोच है। अब अगर मैं बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप जो अभी मैंने देखा था उसी को देखूं तो मेरे पास इसके अंदर दो रिलेशनशिप बन गए। भाई आप अगर यहाँ देखें तो दो रिलेशनशिप है, पहला ये वाला है बाइनरी हो गया, इसी में तीसरा जोड़ दिया तो टर्नरी हो गया। तो बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप जब हमने देखे तो हमारे पास उसने हमें क्लियरली बता दिया कि कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो अब अगर समरी देखें कंसेप्चुअल डिज़ाइन की, कंसेप्चुअल डिज़ाइन किससे बना कि जहाँ पे हमने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए। तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट एनालिसिस है जिससे कि हाई लेवल डिस्क्रिप्शन डेटा का स्पेसिफाई होता है। दूसरी बात, ईआर मॉडल पॉपुलर मॉडल है जो कि कंस्ट्रक्ट करना बहुत एक्सप्रेसिव होता है। बहुत फ़ायदा क्या है कि उसमें हर चीज़ क्लियरली स्पेसिफाई होती है और जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम उसे बनाना चाहते हैं वो क्लियरली हर कुछ बता देता है। बेसिक कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं ईआर के अंदर, एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट होते हैं। एडिशनल भी हम उसके अंदर वीक एंटिटी, इज़ा, हियरार्की और एग्रीगेशन शो कर सकते हैं। सो ईआर मॉडल के कई वेरिएशन हमारे पास हो सकते हैं जब हम कंसेप्चुअली डिज़ाइन करते हैं। दूसरी बात, उस ईआर मॉडल के अंदर कई सारी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जैसे कि की है, पार्टिसिपेशन है, ये सब हम उसके अंदर ले सकते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स हम ईआर मॉडल में स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और कुछ कॉन्स्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो हमारे पास ईआर डायग्राम सब्जेक्टिव होता है, ईआर डायग्राम इज सब्जेक्टिव और वो ट्रिकी भी होता है और या तो एंटिटी एट्रीब्यूट या एंटिटी रिलेशनशिप या कई सारे रिलेशनशिप के बेसिस पे हम उसे बना भी सकते हैं। तो हमारे पास जब भी गुड डेटाबेस डिज़ाइन होगा उसको इंश्योर करने के लिए हमें रिलेशन स्कीमा को एनालाइज करना आना चाहिए और उसका फर्दर रिफाइनमेंट भी होना चाहिए, जिसके लिए हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी या नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक भी कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। With this, your unit is complete and we are going to see another unit very soon. Till then, thank you.